بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سال 2026 کے آغاز پر عمران خان صاحب سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات کی خبر کو بہت بڑی اور ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس غیر متوقع خبر کے کانٹیکسٹ میں فیلڈ مارشل کی جانب سے عمران خان صاحب کو صلح کی پیشکش پر بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر 5 بڑوں کی ملاقات کے بعد صورتحال کی بہتری کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ان 5 بڑوں میں عمران خان، آرمی چیف، چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور آصف زرداری بھی شامل ہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی ضمانت کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور جی ایچ کیو کے درمیان دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ دعویٰ یقیناً میری طرح آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لائے گا، لیکن اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور اس کا فیصلہ کیا آئندہ آنے والے چند دن کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جناب اس ویڈیو میں تفصیلات رکھیں گے ہم آپ کے سامنے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کیا ہے، وہ فارمولہ جو کہ ان 5 بڑوں کے درمیان طے پانے کے حوالے سے بڑے دعوے حکومتی حلقوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اس ملاقات کی ضرورت جو ہے وہ کیوں کر پیش آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے ذریعے پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، شاید وہ عمران خان صاحب انہیں نہ دے سکیں، یا پھر وہ سب کچھ وہ حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا مزید سختیاں بڑھا سکتے ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت سر دست اس بات کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر چھپنے والے ایک کالم کے ذریعے مل سکتی ہے، جسے مضمون نگار نے، جسے یہ کہا جانا چاہیے کہ مکمل طور پر پاکستان کی نوجوان نسل اس وقت پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، بڑا واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر جب یہ آرٹیکل چھپا، اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پہلے میں اس آرٹیکل کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر 5 بڑوں کی اس خبر کے حوالے سے، 5 بڑوں کی ملاقات کی اس خبر کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کالم نگار آتھر مضمون نگار لکھتے ہیں کہ طاقتور بوڑھے مرد اور عورتیں جو اقتدار میں ہیں، ان کے لیے سب ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل، آپ جو کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ سے کچھ بھی نہیں خرید رہی۔ آپ اسکولوں اور کالجوں میں جتنے بھی لیکچرز اور سیمینارز کا احترام کر لیں، پیٹریاٹزم کو فروغ دینے کی کوشش کر لیں، یہ کام نہیں کر رہا۔ پیٹریاٹزم فطری طور پر آتا ہے جب برابر کے مواقع ہوں، مضبوط انفراسٹرکچر ہو، مؤثر نظام موجود ہو، جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں، ان کے حقوق یقینی بنائیں، تو آپ کو اسکولوں کالجوں میں جا کر طلبہ کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں، وہ ویسے بھی کریں گے۔ نوجوان ذہن یعنی جنریشن زی اور الفا وہ بالکل جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کہ آپ انہیں اپنا پیٹریاٹزم کا نقطہ نظر بیچیں، وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت، جو تھوڑی بہت تعلیم ہمارے پاس باقی ہے اس کی بدولت، آپ کی بہترین کوششوں کے باوجود کہ عوام کو جتنا ہو سکے ان پڑھ رکھا جائے، آپ ناکام ہوگے۔ آپ ناکام ہوگے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا سوچیں۔ وہ خود سوچ رہے ہیں، شاید وہ اپنے خیالات بلند آواز سے کہنے سے ڈرتے ہوں کیونکہ وہ سانس لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی خود ساختہ نیکی اور فضیلت کے نقاب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ طاقت سے اقتدار میں رہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سیکیورٹی کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتے۔ اگر یہ آپ کے عوام میں مقبولیت کے بارے میں آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کو ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ نوجوانوں کے نزدیک یہ کافی ہو گیا ہے۔ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت مثالی ہوگا اگر سوچیں کہ وہ کرپشن کے خلاف تحریک چلائیں گے، وہ خاموشی سے نکل جائیں گے اور مڑ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے جو دوست بولے تھے وہ آپ کی جانب سے خاموش کر دیے گئے۔ لیکن بومرز کے لیے یہ سب ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، کوئی مشترکہ بنیاد نہیں۔ جنریشن زی تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے، اقتدار والے فائر وال چاہتے ہیں،
मजबूत फायरवॉल। जनरेशन जी सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है, बूमर्स उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन जी फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां नरम चाहती है, बूमर्स रेगुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। उनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं। यही वजह है कि बूमर्स हार गए हैं। आप जितनी चाहें जंगें करवा लें, जनरेशन जी इन पर मीम्स बना लेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें। जनरेशन जी यूट्यूब, रंबल और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छलांग लगाकर अपनी राय देगी। बूमर्स आप इन ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते थे, अब कोई बेवकूफ नहीं बन रहा। हां, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं, हां, अपार्टमेंट किराए पर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, हां, कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी मेहनतों की बदौलत जो मईशत हमें सौंपी गई वो आपके इखलाक से भी बदतर है, लेकिन इसके बावजूद हम चलते रहते हैं। किताबों, सोशल मीडिया, कॉफी शॉप्स और डबल पैटी बीफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते हुए हम गंदे पानियों में तैरते रहते हैं। हम आप की तकरीरें टीवी पर नहीं देखते क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं वो हंसी का सामान होता है। इसके लिए हमारे पास काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी है। मेन स्ट्रीम मीडिया हम क्यों देखें? वक्त बदल रहा है और जितना जल्दी आप समझें उतना बेहतर, लेकिन आपको परवाह भी नहीं। आपके बच्चे बाहर हैं, आप रोज़ाना लाखों कमा रहे हैं, आपके पास लामहदूद ताकत है, आप बेहतरीन खाना खाते और साफ पानी पीते हैं। आपको परवाह क्यों होगी? तब होगी जब आपको पता चलेगा कि कोई आपको सुन नहीं रहा। जानते हैं क्यों? जनरेशन जी ने हेडफोन लगा रखे हैं, स्पॉटिफाई पेड है। अगर सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होगी तो आधों के पास जाने के वसाइल होंगे, बाकी आधे आपको अपना म्यूजिक सुनवाएंगे और अच्छे अंदाज में नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि बाकी आधे जो आपको म्यूजिक सुनवाने जा रहे हैं, यू विल फेस द म्यूजिक, वो अच्छे अंदाज में नहीं। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं, हम आपका बयानिया नहीं खरीद रहे, ये बहुत पुराना हो चुका है। कमाल का आर्टिकल, जबरदस्त अंदाज में लिखा गया, एक ऐसा बेहतरीन आर्टिकल जिसने इस वक्त तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाजे कर दी है। नौजवान नस्ल की बेहतरीन अंदाज में तर्जमानी, वो नौजवान नस्ल जिसकी 90% तादाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को अपना रहनुमा और लीडर समझती है। यह कॉलम जोरैन निजामानी का है, जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यूट की वेबसाइट से डिलीट करवा दिया गया है। इस कॉलम में कहा गया कि इक़्तिदार में बैठे बुजुर्ग तबके के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि नई नस्ल हुब्बुल वतनी के मसनूई बयानिए, ताकत के दिखावे और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में इखलाकी लेक्चर्स को कबूल करने को तैयार नहीं है। और कॉलम निगार के मुताबिक नौजवान नस्ल इंटरनेट, मुतबादल प्लेटफॉर्म्स और अपनी रोजमर्रा हकीकतों के जरिए निजाम की मुनाफकत, सेंसरशिप और खुदगर्जी को साफ साफ देख रही है। और उन्हें यह भी मालूम हो चुका है कि इक़्तिदार को अंदर से चैलेंज करना मुमकिन नहीं। तहरीर में बताया गया है कि नौजवान खुली बगावत की बजाय खामोशी, मुल्क छोड़ने या निजाम से लातलकी को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बोलने वालों को दबाया जाता है और अवामी मकबूलियत को कंट्रोल के जरिए काबू में रखा जाता है। मुसन्निफ इस बात पर जोर दे रहा है कि नस्लों के दरमियान कोई मुश्तरका बुनियाद बाकी नहीं रही। नौजवान सस्ती टेक्नोलॉजी, आज़ादी और कम पाबंदियां चाहते हैं, जबकि हुक्मरान तबका कंट्रोल, टैक्स और सख्त ज़ाब्तों पर कायम है। और आखिर में यह लिखा गया है कि मुआशी दबाव, महंगी जिंदगी, मीडिया की गैर मकबूल साख और रोजमर्रा जद्दोजहद के बावजूद नौजवान अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं, हुक्मरानों की बात सुनना छोड़ चुके हैं और यह वाज़े कर दिया है कि पुराना बयानिया अब इन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। आधे मुल्क छोड़ जाएंगे, आधे आपको अपना म्यूजिक सुनाएंगे और वक्त करीब है जब वो आपको म्यूजिक सुनाएंगे। और किन की जानिब यह इशारा है? डेफिनेटली मैं खुलकर बात करता हूं, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा है, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया की जानिब इशारा है। इसमें पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जानिब इशारा है, क्योंकि आपने कौम और मुल्क के नौजवान नस्ल के मकबूल तरीन रहनुमा, जिसे उन्होंने 2/3 अक्सियत के जरिए 8 फरवरी 2024 की रात को इक़्तिदार तक पहुंचाया था, आपने उसे जेल के अंदर डाल दिया। आपने जाली हुक्मरानों को इक़्तिदार सौंप दिया, जाली फॉर्म 47 बनाकर, और आज नौजवान नस्ल खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर रही है। ये आर्टिकल उनकी जुबान बन चुका है, आप इस आर्टिकल को भी डिलीट कर देते हैं। यही वो वजह बन रही है कि इस किस्म की पेशकशें अब आ रही हैं। मैं वापस आपको थंबनेल के ऊपर लिखी गई उस खबर की जानिब लेकर बढ़ता हूं, जो दावा किया जा रहा है राना सनाउल्लाह की जानिब से, जिसका जवाब आ रहा है
आमिर डोगर की जानिब से 5 बड़ों की मुलाकात के हवाले से कि 5 बड़े क्या कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है। एक सवाल पैदा होता है, अगर आप ये कहते हैं कि आपको इमरान खान साहब के अंदर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर हालात बड़े ज़बरदस्त हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, सियासी इस्तेकाम है, हमें इमरान खान की परवाह नहीं, तो आए रोज़ क्यों इस किस्म की मिन्नतें तरले करते हो? तुमने तो मुलाकातें भी बंद कर दी हैं, तुमने तो अपनी तरफ से जाली हुक्मरान भी बढ़ा दिए हैं, आपने तो 2030 तक अपनी सीटें भी पक्की कर ली हैं, फिर किस बात की परेशानी है कि राना सनाउल्लाह और इस किस्म के लोग रोज़ बैठ कर ये बात करते हैं। मौसूफ ने बहुत बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का उन्होंने नाम तो ले लिया, शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर नवाज शरीफ भी हैं, इसके अंदर आर्मी चीफ साहब भी हैं, इसके अंदर जनाब DGI भी हैं, इसके अंदर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी हो सकते हैं, यहिया अफरीदी साहब भी हो सकते हैं। और ये बात वो एक जंग ग्रुप के एक प्रोग्राम के अंदर अपने फेवरेट टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत भी हासिल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम बंद कर देती है तो हालात बेहतर समत में जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात का रास्ता आसानी से खुल सकता है। यानी अब ये इस सारी चीज़ों के बदले इमरान खान साहब से मुलाकात देंगे तो शायद आप किसी गलत फहमी में मुब्तला हैं कि सिर्फ इस एक बात के ऊपर आप पूरी की पूरी नौजवान नस्ल को, जिसकी तर्जुमानी ज़ुरैन नज़मानी साहब ने अपनी आर्टिकल के अंदर कर दी है, आप शायद उनको कोई नया लॉलीपॉप दे सकते हैं। हरगिज़ नहीं। कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, इन्हें बंद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं, इनसे इज़हार लातल्लुकी करना होगा। और फिर आगे चलकर वो कहते हैं कि 8 फरवरी की जो इमरान खान साहब की अपील है वो नाकाम होगी और पहिया जाम नहीं होगा। सूरत हाल तब बेहतर होगी जब 5 बड़ों में एतमाद बढ़ाने के इक़दाम हों। इन बड़ों में शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान हैं, और फिर अगले नाम वो नहीं ले रहे, हम आपके सामने रख देते हैं। इस मुल्क के जो 5 बड़े हैं, इस वक्त सबसे इख्तियारात का हामिल कौन है, सबसे ज़्यादा इख्तियारात इस वक्त किसके पास हैं? नाम चाहे हम न लें, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कौन है जिसको इमरान खान साहब से परेशानी है, जिसको इमरान खान साहब से पशेमानी है, जिसको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि मामलात नहीं चल रहे और उनके ज़रिए बार बार ये तजावीज़ आ रही हैं। कौन है जो है वो निज़ामानी के आर्टिकल्स डिलीट करवा रहा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर से, जो कि अल्फाजी की जानिब से, माफ़ कीजिएगा, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा की जानिब से बूमर्स के नाम बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम है कि नहीं जनाब बूमर्स, आपने हमारे इस मुल्क को तबाह कर दिया, आपके साथ हमारे मामलात किसी सूरत नहीं चल सकते। और राना सनाउल्लाह साहब इस माहौल के अंदर ये दावा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को हम सुलह की पेशकश कर रहे हैं। इसमें वो जनाब ये सुलह की पेशकश ना वो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और नून लीग की जानिब से कर रहे हैं, बल्कि ये पेशकश वो इदारों की जानिब से भी कर रहे हैं, ये पेशकश वो फील्ड मार्शल साहब की जानिब से भी कर रहे हैं। अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा सबको हो चुका कि इमरान खान साहब को जब तक जेल से बाहर लाकर उनकी हमायत नहीं हासिल कर ली जाती, इस सिस्टम के ऊपर किसी भी किस्म का नौजवान नस्ल का जो एतमाद है वो किसी सूरत नहीं आ सकता। आमिर डोगर साहब इस खबर के ऊपर बोले कि 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं मलिक आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा कि 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि आज नहीं तो कल ऐसा हो जाए, दरवाजे खुले रखने चाहिए। और ये बात वो कर रहे थे जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि 5 बड़े, इमरान खान साहब समेत 5 बड़े मिल बैठें, ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर बात करें तो फिर इस पर कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। जिसके जवाब में आमिर डोगर साहब ने भी कहा कि ये 5 बड़े अगर मुलाकात करें तो रास्ता निकल सकता है। कौन सा रास्ता ये निकालना चाहते हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ अपने ज़राए की खबर। चंद दिन पहले आपको याद होगा थंबनेल के ऊपर जब हमने ये लिखा कि आगे सवालिया निशान था, क्वेश्चन मार्क था कि फील्ड मार्शल साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात, तो उसका यही मतलब था कि उस मुलाकात के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अब ये मुलाकात ही पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ा सकती है। और अब इसके अंदर दीगर लोग भी शामिल कर दिए गए। चाहते क्या हैं, मुलाकात का एजेंडा आइटम क्या है इनका,
قومی حکومت فارمولہ چاہتے ہیں 2 سال کے لیے قومی حکومت قائم کر لی جائے، چاہتے ہیں کہ اس قومی حکومت کے اندر 2028 میں الیکشن کروا دیے جائیں، چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے نیا چیف جسٹس آ جائے، چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے نیا چیف الیکشن کمشنر آ جائے، چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے نیا وزیر اعظم بھی آ جائے، لیکن وہاں پر کوئی نیا نہ آئے جہاں پر اصل میں مسائل جہاں کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو 2030 تک کے لیے بریک لگا دی گئی نا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ وزیر اعظم کے طور پر کوئی ونڈر بوائے آ جائے، وہ ونڈر بوائے ہمارا آدمی ہو، کن کا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی ہو، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم کر دی جائیں، لیکن اس میں عمران خان صاحب نہ ہوں، لیکن اس میں نواز شہباز مریم نہ ہوں، لیکن اس میں آصف زرداری بلاول نہ ہوں، تینوں سیاسی جماعتوں کے ایسے لوگ ہوں جو کہ اس وقت حکومت کے اندر نہیں ہیں، سعد رفیق ہوں، جاوید لطیف ہوں، قمر زمان کائرہ ہوں، اعتزاز احسن ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز الہی ہوں، ان لوگوں پر مشتمل قومی حکومت بنائی جائے اور پھر 2 سال چلنے دی جائے، ہمارا ونڈر بوائے اسے چلائے اور پھر ہم یہ کہیں کہ 2028 میں ہم صاف شفاف الیکشن کروا دیں گے۔ کیا آپ عمران خان صاحب کو ابھی تک اتنا سادہ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کی اس قسم کی کوئی بھی پیشکش قبول کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔